बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। पेशावर नमक मंडी में चरसी शीश महल होटल का मालिक निसार चरसी तिक्का का कहना था कि निसार चरसी शीश महल होटल ये एक मशहूर होटल है। पूरा खैबर पख्तूनख्वा में निसार चरसी शीश महल होटल में मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं, बाहर मुल्कों से भी लोग बस खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से यही गुजारिश करते हैं कि मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं। खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आए तो इनका जिम्मेदारी किस पर होगी। फिर हुकूमत से मुतालबा है कि इस होटल पर सिक्योरिटी का इंतजाम करें। मज़ीद जानते हैं ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ साकिब खान की इस रिपोर्ट में। सलाम खैर जब संगे दा खैर दे जी खैर मेहरबानी जी से बावल हो रहा था वो माशाल्लाह तासो दा होटल चिकम दे चर्ची होटल दा खो मशहूर होटल ले पे खबर की वो माशाल्लाह तासो दा खपल अवाम चिकम दे ढेर ज्यादा मिन हम दा ओ कता सो गोरे तासो पदी होटल के ढेर मेहनत करे दे हर योशिश तासो चिकम दे अवेलेबल ले मिलावी दे तरह ओ तासो चिकम दे खपल अवाम से मैसेज वर्कावल वाडे इदारो से मैसेज वर्कावल वाडे यार जी जम्मू खुदा अल्लाह फजल ले जम्मू को दे कार दे होटल पिंदश पे ताविया कालू शो मक्के जम्मू वालिद से वो दा खिदमत कोलो ब्यागे ना बाद पे जमा सलवी शो हमारा जमा बची दी چې زمونږ دا پاکستان او دا خدمت کوو او دا هوټل زمونږ دا پیشه ده او دا کاروبار کوو خو زما یو داسې یو خوراک دی جی دا صفا خوراک دی دې کې مصالې نشته دغه نشته دې کې خالي یو مالګه ده جی اوس پښتانه چې دي که نه پښتانه دا زما وروڼه دي دا ما سره دي اوس ما څومره کسټمر راځي پنجاب نه راځي جی هر ځای کې غوښه شته خو دا ټیسټ دا مزه نشته اوس ما ته ټول پنجاب راځي اوس دې غیر ما ته جي ټول انګریزان زما د پاکستان له زما د پښتونخوا له او د نثار چرسي تکې له دې تکې له چې خپلې پښتونخوا له او د خپل قوم له او د خپل وطن له د پاکستان له طرفه موږ دنیا له یو خوند ورکړی ما ته ډېر لرې لرې ځینې خلک راځي دې پښتونخوا له او دې مزې له دې تکې له نثار چرسي تکه دې کې زما هم عزت دی او زما د حکومت هم عزت دی او زما د پښتونخوا او بالکل د خیبر پښتونخوا د دې انتظامیه او د دې حکومت د دې ټولو عزت دی होटल ढेर मशहूर दे मतलब करे हुकूमत से मुतालबा कवे یاره خدا یو مطالبه ده چې دا نمک منډي د دام زما په نوم ده او دا فوډ سټریټ دی دام زما په نوم دی خو دلته ماله یو سکوټي پکار ده ولې ما ته ډېر خلک راځي درانه خلک راځي او ټول نوکر پیشه خلک راځي نو دلته په سپینو جامو کې راځي دلته ماله یو سکوټي پکار ده ما ته یو اته کسان پکار دي چې ما سره دلته په دې فوډ سټریټ کې موجود دي او زما سپورټي خدای مکه سبا داسې یو داسې واردات داسې یو پروګرام ونشي چې زموږ بې عزتي پکې وشي او څه مسله پکې جوړه شي موږ دا نه غواړو چې دا زموږ د افسرانو یو توخین شي او زموږ هم یو توخین او زموږ دا کاروبار نه دی انشاءالله چې زموږ په وجود کې صحیح نو موږ به دا کاروبار به موږ برقراره ساتو برقراره دا وګوره چې دا تاسو وګوره دا ټول بار ملک نه خلک راځي او نثار چرسي له تکې نه ګوره بار ملکونو کې دا زموږ ډېر فخر دی چې د پاکستان یو خو زموږ د پاکستان دا ذوقات دی نثار چرسي او یو د پښتنو کلچر دی ګوره بار ملکونو کې هر ملک کې خپله رویه ده خپل ګوره هر یو ملک یو ګوره چېرته چپس دي چېرته برګرې دي خو هغه نه د دې خلکو زړه موړ دی انګریزان ما دپاره ویزټ کوي ما دپاره تاوان کوي د بار ملکونو راځي دا ګوره شاته تاسو وګورئ موجوده ما ته راځي ښځې او نر غټ ګاډي سره د پیمدو ما له راځي او زما د تیکو نه خوندونه اخلي زه خو چې په دې کې ګوره په که میپ ګورئ نثار چرسي که ګوګل ګورئ نثار چرسي که یوټیوب ګورئ زه ډېر مشهور یم ولې ما محنت کړی ما زما پلار محنت کړی د دې پاکستان بیا ما محنت کړی او بیا ما نه بعد زما بچي دي هغه محنت کوي ګوره زما په کانو کې زما ټولې دنیا ته او بیا هندوستان مودي له خو سپیشل زما چیلنج دی چې ما سره خپل پاکستان کې خپل قوم له
خپل کسټمرو له تم د 52 صوبونه کوک ټول راغونډ کا او د پاکستان د طرفه بزیم ما سره ته مقابله وکړه ما سره ته کانه جوړه کا زه به تاله انعام درکم کني انعام به مال راکې زه خپل پاکستان باندې فخر کوم فخر زه پې د خپل بچي قرباني کوم خپل ځان پې قرباني کوم خو دا ملک ګټم دا ملک زه چاله د دې سر نه ښکته کوم تاسو وکړله چې صاحب مشر ډېره ښایسته خبرې وکړي د خپل د ادارو دپاره د خپل د ولس د پولیس دپاره ډېر ښایسته میسج یې ورکړو چې دا خبره زموږ خبره ده دا ملک زموږ ملک دی اگه د بهر ملکونو نه وي اگه پنجاب نه وي که د لاهور نه وي د هر علاقې نه کسان راځي او د حاجي صاحب سره یو مینه هم لري او دا چرسي هوټل دا مشهور هوټل دی په نمک منډی کې نو د حکومت نه دا مطالبه کوي چې ماته د سکیورټي راکړي ځکه چې دلته کې قسم قسم خلک راځي داسې نه وي چې دلته داسې حادثه راپېښه شي او ماته د انتظامیه نه دغه دی چې ماته د سکیورټي راکړي او ما سره د حکومت خپل طرف سپورټ وکړي جی शामिल करते हैं हरिपुर से खबर पख्तूनख्वा मालूमात तक रसाई के कानून 2013 की आगाही और आम लोगों को इसकी मालूमात फराहम करने के हवाले से आईआरएस के ज़ेर तमाम एक रोज़ा तरबीती वर्कशॉप का इनकाद किया गया जिसमें मुकामी सहाफ़ियों सोशल वर्कर्स नौजवान तलबा समेत तमाम मुकातबा फ़िक्र के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ हरिपुर नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा मालूमात तक रसाई के कानून 2013 की आगाही और आम लोगों को इसकी मालूमात फराहम करने के हवाले से आईआरएस के ज़ेर तमाम एक रोज़ा तरबीती वर्कशॉप का इनकाद किया गया जिसमें मकामी सहाफ़ियों सोशल वर्कर्स नौजवान तलबा समेत तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर आईआरएस की चेयरपर्सन साइमा रजा एडवोकेट ने मीडिया टॉक में कहा तो बेसिकली इस सेशन का मकसद ये था आरटीआई एक्ट 2013 को इंट्रोड्यूस करवाना और आरटीएस को इंट्रोड्यूस करवाना। राइट टू सर्विसेज जो है हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमीशन मौजूद है कि अगर जो सर्विसेज जो है वो दी जाती हैं किसी भी डिपार्टमेंट से ली जाती हैं ये सर्विसेज डिलीवरी के हवाले से तो वो जो है वो हमें नहीं मुहैया की जा रही तो आपकी एप्लीकेशन पे विदिन 3 डेज़ और 7 डेज़ जो है वो अमल किया जाएगा और उस डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी जाएगी। इस एक रोज़ा तरबीती वर्कशॉप में नौजवानों को सरकारी इदारों से खैबर पख्तूनख्वा मालूमात तक रसाई के कानून 2013 के तरीक़ाकार फ़वाइद और ज़ाब्ता अखलाक के बारे में आगाह किया गया जिस पर शुरा की जानिब से आईआरएस इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया गया। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। आरओ ऑफिस के बाहर साबिका वफाकी वजीर मोहम्मद मियां सोमरू की मीडिया से बातचीत। जैकबाबाद पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया और प्लानिंग के तहत मुझे हराया गया है और धांधली हुई है, बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज़ाद उम्मीदवार NA 190 मोहम्मद मियां सोमरू। मजीद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट में। देखिए अभी अगला मोहम्मद मियां साहब ठुल में वहाँ पर बताया गया है कि जब पोलिंग स्टाफ जैकबाबाद आ रहा था तो पूरे कोच को अगवा किया गया, कई पोलिंग स्टेशनों को अगवा करके 12 बजे तक उनको लदोकोप करके वहाँ पर ठप्पे लगाए गए। इस हवाले से अभी तक कोई मुकदमा दर्ज उनके खिलाफ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या होगा? तो एडमिनिस्ट्रेशन बता सकती है, मैं कोई बात कर रही हूँ, आप कह रहे हैं ये बात करते हैं। वहाँ पर धांधली इन इलाकों में हुई है यकीनन सरदार मोहम्मद मियां सोमरू 2018 में कामयाब थे उन्हीं अवाम जा कम न क्या अवाम जे रिएक्शन ने जो है इतना वोट न घटो था मोहम्मद अरे वो आपको घणी दफ़ा इलेक्शन उन्होंने छा कर पेंशन जो है पार्टी सुठो अने बाकी जेके फंड आया फेडरल गवर्नमेंट 21 अमेंडमेंट को अड़ी तरमीम को वो घणो खुशबू बजे थी जेके थोड़ा घणा फंड आया पाइप जे हिसाब सां जे साम्हूं आहे टफ टाइम जो ट्रांसफार्मर सोलर लाइट ये पेश हुई। अच्छा, मुताद से मुलाकात मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर आपके एजेंट्स को ट्रेड किया गया है, तो इस पर कुछ रोशनी डालें। बिल्कुल किया गया, बिल्कुल किया गया। ये ऐसे होता है ना कि उस वक्त जो स्वयं मुलविस हो जाए, एक इन्होंने बड़े सोच समझ के सारे एजेंट से पुलिस के हो या प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो या दूसरे लगाए थे अपने साथ सब मिलकर कर रहे थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम है कि अगर किसी कैंडिडेट एजेंट नहीं है तो पोलिंग ग्रुप नहीं करे, नहीं हुआ और खुद मिले हुए थे सर। अभी आरओ से मिले आप कितने सर्टिफाइड हैं, क्या होगा आगे? आरओ से तो बात निकल गई, बाकी देखेंगे। सही तव्हां जेके सबूत आहिनि तव्हां इलेक्शन कमीशन खणी वेंदो, तव्हां केतिरा प्रूफ ॾींदा आहियो तव्हां पंहिंजा? पूरो उम्मीद आहियूं तॾहिं वञूं था, बाक़ी उम्मीद असांजी सही आहे या ग़लति आहे वक़्तु ॿुधाईंदो।
खबर शामिल करते हैं सखर से। ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सखर के शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के असल कातिल गिरफ्तार ना किए गए। सहाफ़ियों का 184 रोज भी एहतजाज जारी। कातलों की गिरफ्तारी के लिए नारे लगाए गए। सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ मंगल के रोज भी सखर प्रेस क्लब के सामने SUJ के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहकर शाह की क़यादत में एहतजाजी इलामती भूख हड़ताल का सिलसिला जारी रखा गया। एहतजाज में सखर प्रेस क्लब के सदर आसिफ जहीर लोधी, लाला शहबाज खान, सैरिश खोखर, जलालुद्दीन भयू, असर दायू, बाबर खोखर, फजल रहमान कुरैशी, खालिद अमजद, बख्श अली पलपुटो, इब्राहिम सोमरानी, नदीम कुरैशी, मोहम्मद अली सोलंगी, अकील कुरैशी, नादिर संचानी, असलम दायू और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर रहनुमा ने कहा कि शहीद जान मोहम्मद महर के शहादत को 6 महीने का तवील अरसा गुजर चुका, लेकिन हुकूमत और सखर पुलिस की जानिब से किए गए वादे वफा नहीं हुए और न ही इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के अहकामात के मुताबिक FIR में नामजद मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के लिए अमल किया गया है। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। लोग मुझसे पूछते हैं कि इंतखाबात में जमात इस्लामी का क्या बना। हारूनाबाद फकीरवाली के सूबाई हल्का PP 241 से जमात इस्लामी पाकिस्तान के टिकट होल्डर प्रोफेसर मारूफ आजम ने कहा है कि लोग मुझसे सवाल करते हैं कि इंतखाबात में जमात इस्लामी पाकिस्तान का क्या बना। इन सबको मेरा पैगाम और जवाब है कि मैंने छोटे बड़े तजारती मराकज़ के अलावा 90 के करीब गाँव में जाकर हर सतह के लोगों, मजदूरों, किसान, नंबरदार, खान, मलिक, वडेरे और छोटे सबसे हाथ मिलाया और मुलाकातें की। इन मुलाकातों में इनसे अर्ज की और समझाने की कोशिश की और कहा कि अगर वो चाहते हैं कि इनको यूरिया खाद ब्लैक में लेने की बजाय खुलेआम फैक्ट्री रेट पर मैसर हो, किसान को अपनी अजनास मुनाफे बख्श नर्ख पर फरोख्त करनी है। पेट्रोलियम मसनूआत टैक्स फ्री नर्ख पर 40 से 50 रुपए में फी लीटर मिले। आटा के असूल के लिए किसी लाइन में नहीं लगना। मार्केट से चीनी की अदम दस्तयाबी की रोकथाम और सरेआम दस्तयाबी के लिए बिजली 70 रुपए यूनिट की बजाय 2 रुपए यूनिट में लेना चाहते हैं। मुफ्त तालीम और मुफ्त इलाज के लिए शहरी तर्ज पर गांव की तरक्की और साफ पीने के पानी के इंतजामात के लिए टैक्सों की बोझ से निजात के लिए तो फिर जमात इस्लामी पाकिस्तान का साथ दें और नई राह पर चलकर मंजिल हासिल करें। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ कराची इरफान मरी के मुताबिक निजी न्यूज़ कराची प्राइवेट लिमिटेड ने इम्तियाज़ खोसू को सूबाई डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ सिंध मुकर्रर होने पर निजी न्यूज़ कराची प्राइवेट लिमिटेड के स्टाफ और पूरी टीम की तरफ से वेलकम करते हैं। खबर शामिल करते हैं खैरपुर नातिन शाह से। पीपल्स पार्टी के नौमुंतखब MPA इंजीनियर अब्दुल अजीज जुनेजो अलालत के बायस आज कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए, जिसकी आखिरी रसूमात आबाई गाँव खानपुर अली बख्श जुनेजो में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में रफीक अहमद जमाली, MPA फयाज अली भट्ट, डॉक्टर असद अली लगारी, मुमताज़ अली जोक्यू, एजाज हुसैन चांडू, सैयद साबिर अली शाह, जुल्फकार अली जतोई, मुमताज़ अली मला समेत अहले इलाका ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। अजीज जुनेजो ने 7 दिसंबर 1961 में 4 मरतबा रुकन सूबाई असम्बली रहने वाले हाजी अमीर बख्श जुनेजो के घर में कदम रखा। अब्दुल अजीज जुनेजो शोबा महारत के लिहाज से इंजीनियर थे, जिन्होंने महकमा इरिगेशन में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के फराइज भी सर अंजाम दिए। अब्दुल अजीज जुनेजो ने लाहिकीन में 1 बेवा, 4 बेटियां और 1 बेटा छोड़ा है। खानपुर का जुनेजो खानदान मेहमान नवाजी के लिहाज से सूबे भर में अलग पहचान रखता है। अब्दुल अजीज जुनेजो वालिद की वफात के बाद इनकी अवामी खदमात को जारी रखे हुए थे। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। इलेक्शन रिजल्ट का मामला NA 98 के हारने वाले उम्मीदवार मुमताज़ अहमद ने थाना सिटी में दरख्वास्त दे दी। इलेक्शन रिजल्ट में जालसाजी करने वालों को कानून के कटहरे में लाएंगे। मुमताज़ अहमद का मौक़िफ़, किसी को अवाम के वोट चोरी करने नहीं देंगे। मुमताज़ अहमद ने NA 98 से इलेक्शन लड़ा और 1,05,653 वोट लेकर हार गए थे। फॉर्म 49 NA 98 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी शहबाज 1,19,559 वोट लेकर कामयाब करार पाए। फॉर्म 49 फॉर्म 45 के मुताबिक मेरा रिजल्ट वोटों की तादाद 1,19,000 से जायद है। मुमताज़ अहमद का एप्लीकेशन में मौक़िफ़ मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार शहबाज बाबर के वोटों की तादाद 95,000 बनती है। मुमताज़ अहमद का एप्लीकेशन में मौक़िफ़ RO NA 98 सलेमान मंशा असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी ने मुखालिफ उम्मीदवार से साज़बाज़ होकर रिजल्ट में रद्दोबदल करके मुझे नाकाम उम्मीदवार जाहिर किया। शामिल करते हैं हारूनाबाद से। इलाके की तामीर तरक्की और इंसानी हकूक़ की बहाली अवामी राज के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ आज़म अली चौधरी एडवोकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हारूनाबाद फकीरवाली के सूबाई असम्बली के हल्का
PP 241 से साबिक सूबाई असम्बली के उम्मीदवार और मुमताज़ कानूनदान आज़म अली चौधरी एडवोकेट ने कहा है कि हमारी ज़िंदगी खुली किताब के मानंद है और जबर और खौफ के इस दौर में जो मोहब्बत हमें अवाम ने दी और वकला बरादरी समेत साथियों ने साथ निभाया, मेरा सासा है ज़िंदगी भर इलाके की तामीर और तरक्की और अवामी हकूक़ की बहाली, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। हम कप्तान के सिपाही हैं और दुनिया ने देख लिया है कि हालात कुछ भी थे, हक का परचम लहराया भी और सरगुन नहीं होने दिया। सब साथियों को मेरा सलूट है। आज़म अली चौधरी ने कहा है कि अवामी हूँ और अवामी ही रहूँगा। मैं और मेरे साथियों के दरवाजे 24 घंटे अवाम के लिए खुले हैं। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन नवीद हैदर शिराजी और रीजनल पुलिस ऑफिसर तैयब हफीज चीमा का मंडी बहाउद्दीन का दौरे के दौरान उन्होंने इलेक्शन मटीरियल की तरसील और तकसीम समेत सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन नवीद हैदर शिराजी और रीजनल पुलिस ऑफिसर तैयब हफीज चीमा ने मंडी बहाउद्दीन का दौरा करके तमाम हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के इजलास की सदारत की और इलेक्शन इंतजामात बारे ब्रीफिंग ली। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर शाहिद इमरान मार्ट ने बताया कि जिला मंडी बहाउद्दीन में आम इंतखाबात के पुरअमन और कामयाब इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इलेक्शन मटीरियल की पोलिंग सेंटर्स पर बाहिफाजत मुंतकिली जारी है, जिसको आज रात तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। जिला भर के 80 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। इस मौके पर कमिश्नर गुजरांवाला का कहना था कि जिले इंतजामिया, पाक आर्मी, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक इलेक्शन के पुरअमन और मुनसफाना इनेकाद को यकीनी बनाएंगे। तमाम इदारे इंतखाबी अमल की पुरअमन तकमील के लिए अपनी ड्यूटियां आसान तरीके से सरअंजाम दें। शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। कंसल्टेंट मुहतसिब मंडी बहाउद्दीन मलिक मोहम्मद रफीक और लाइजॉन ऑफिसर मैडम शाजिया बशीर की सरबराही में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मंडी बहाउद्दीन में सूबाई महकमों से मुतालिक अवामुन्नास के मसाइल के हल के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और तलबा और तलबात की कसीर तादाद में शिरकत। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मुगल की इस रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन मुहतसिब पंजाब रिटायर्ड मेजर आसम सलमान की हिदायत की रोशनी में सूबाई महकमों से अवामुन्नास के मसाइल के हल के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए कंसल्टेंट मुहतसिब मलिक मोहम्मद रफीक का कहना था कि सूबाई मुहतसिब पंजाब के दफातर का बुनियादी मकसद सूबाई महकमों से मुतालिक शिकायत का इजाला करके आम लोगों को इनकी दहलीज पर ही फौरी और सस्ता इंसाफ फराहम करना है। मुहतसिब पंजाब के दफातर में शिकायत दर्ज करवाने के लिए किसी किस्म की कोई फीस है और ना ही साइल को वकील की जरूरत होती है। साइल की शिकायत बराह रास्त सुनी जाती है और बाज़ औक़ात फौरी हल तलब शिकायत का मौके पर ही फैसला कर दिया जाता है। कंसल्टेंट मलिक मोहम्मद रफीक ने सामाईन और हाज़रीन से सूबाई महकमा जात के खिलाफ बदइंतजामी, बदनज़मी, बेजा ताख़ीर और बदनवानी, करप्शन की सूरत में हसूल इंसाफ के लिए मुख्तसिब पंजाब रीजनल ऑफिस मंडी बहाउद्दीन से रुजू करने पर जोर दिया। सेमिनार के इख्तिताम पर आगाही और मालूमाती पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। खबर शामिल करते हैं झंग की तहसील 18 हज़ारी के इलाके चीला के नज़दीक दरिया जहलम पर पुल, जहां रोजाना हजारों की तादाद में लोग गुजरते हैं, लेकिन इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। देखते हैं झंग से मोहम्मद अशरफ सियालवी की ये रिपोर्ट। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, झंग की तहसील 18 हज़ारी के इलाके चेला के नज़दीक दरिया जेलम पर पुल, जहां रोजाना हजारों की तादाद में लोग गुजरते हैं, लेकिन इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है और इंतजामिया की कोई तवज्जो नहीं। ये पुल मैकेनिकल हाईवे पंजाब के पास है और जंग में इसकी कोई निगरानी नहीं कर रहा। ठेकेदार अपनी मर्जी करते हैं। रास्ते बिल्कुल ख़राब है। DCO जंग जनाब अब्दुल्ला खुरम न्याजी साहब से नोटिस की अपील। आइए सुनते हैं आवाम की ज़बानी। अस्सलामुअलैकुम। ये वेखो ये मछियाना पुल तहसील 18 हज़ारी जिला जंग दे विच ये जंग दा मेन राह है। इस दी हालत वेखो, ये जिहड़ी इन्ना फोरमैन इस पुल दा वो बिल्कुल ही नकारा तरीन है पिया। उन कोई पता नहीं है पिया पुल का किस तरह काम करना है। असी आवाम नूं उसने इस तरह फुद्दू लाया हुआ, मैं हुण काम करा रहा, सुबह करा रहा या हुणे हो जाता है। ये उसका किरदार है पिया। और ये वेखो कि पुल दे विच इतना फासला है पिया, इत्थों आवाम गुजर रही है। जंग दा मेन राह है, ये जंग दा मेन रास्ता है पिया। जंग DC साहब थोड़ी जी सर तवज्जो दियो। साढ़े जेड़े तरीक इंसाफ ते इस बारी मुंतखब होए नुमाइंदे, उन्होंने भी तो कैपेसिटी नहीं है कि साढ़े आवाम दे काम करे सी, ना ही उन्होंने काम ते फिर ते वोट मिले है। सर इस ते तवज्जो दियो, मेन राह है जंग दा।
कैमरामैन टीम के हमरा मोहम्मद अशरफ सियालवी और न्यूज। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक अमन ओमान की खराब सूरत हाल, सखर मुल्तान मोटरवे बंद कर दिया गया। M5 घोट की मोटरवे को रोहड़ी इंटरचेंज से रहीमिया खान तक तमाम गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है। M5 जराए मोटरवे पर हिफाजती तारे और कैमरे नस्ब करके कंटेन किया जा रहा है। SP मोटरवे तैमूर खान 3 रोज में M5 पर मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। मोटरवे घोट की गुज़िश्ता रात डाकुओं ने मुसाफिर बस मजदा ओवर विगो पर फायरिंग की थी। पुलिस डाकुओं की फायरिंग से एक मौसिस मुसाफिर हलाक, 3 मुसाफिर जख्मी हुए थे। शामिल करते हैं टंडो मोहम्मद खान से। थाना शेख भरक्यू की हदूद में एक फ्रूट सेल्समैन अमरशी कोहली के अंधे कत्ल का मामला हल। कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। SSP टंडो मोहम्मद खान सैयद सलीम शाह तफसीलात के मुताबिक 6 दिन पहले थाना शेख भरक्यू के इलाके गांव अली खान वसान के करीब केले की फसल से एक 27 साला शख्स की लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त अमरशी के नाम से की गई, जो एक टांग से मजदूर था और फ्रूट बेचने का काम करता था। बादजा पुलिस ने मकतूल के भाई की मुद्दत में नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना शेख भरक्यू पे दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी थी। कत्ल के अफसोसनाक वाक़े का SSP टंडो मोहम्मद खान ने फौरी नोटिस लेकर टीम तश्कील दे दी थी। पुलिस टीम ने मकतूल के दोस्तों और रिश्तेदारों से मालूमात और जदीद टेक्नोलॉजी और टेक्निकल ज़राए का इस्तेमाल करते हुए कातिल का सुराग लगाकर अंधे कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। कोहली ज़ात का अमर शिकोली ब्लाइंड मर्डर हुआ, जो केले के फसल में पड़ा हुआ था, जिसको हमने मुलाहिजा किया। उसके बाद इसका कोहली का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद FIR दर्ज की गई। FIR नंबर था 11/20/24/302 तज़ीरात पाकिस्तान। एक ब्लाइंड मर्डर था। तफसीलात के मुताबिक 6 दिन पहले शेख भरक्यू के इलाके गाँव अली वसान के करीब केले के बाग में या उसमें ज़मीन पे अमर शिकोली की लाश मिली थी, जो ब्लाइंड मर्डर था। उसके बाद इस कत्ल के अफसोसनाक वाक़े के बाद SSP टंडो मोहम्मद खान सैयद सलीम शाह साहब के सख्त अहकाम और उन्होंने इस पर नोटिस लेकर DSP टंडो मोहम्मद खान की सरबराही में टीम वो दी, जिसमें SHO शेख भरक्यू, इंस्पेक्टर अब्दुल्ला कुमरानी, ज़मीर नारेजो, मोहर रिजवान अली जिंद पर मुश्तमिल कमेटी दी गई। पुलिस टीम मकतूल के रिश्तेदारों से मालूमात, जदीद टेक्नोलॉजी के ज़राए का इस्तेमाल करने का सुराग लगाकर अंधे कत्ल मुलव्वस मरकजी मुल्जिम को आज मोरखा 13 तारीख को बवक्त 400 बजे पीरू वसाण लिंक रोड पीरू वसाण के करीब इसको गिरफ्तार किया, जिससे मरने वाले की एक अदद मोबाइल फ़ोन जो उसके बदन तलाई से मिली थी, और फिर इससे जो कत्ल के मुतालिक मालूमात हासिल ली गई, जो इसने बगैर मालूम के सब कुछ बता दिया कि जी वाकई मुझसे गलती हो गई है। और इसने बताया कि मैं सुजुकी चलाता था और करीब ही इसका घर है अमर शिकोली का, जो मेरे पास कारोबार न होने की वजह से सुबह मुझे पता था कि ये व्यापारी है, ये कराची से वापस आता है। सुबह 5 बजे करीब मैं भी घर से निकला कि कोई शॉप वगैरह खुली होगी तो सिगरेट पीऊँ या कुछ सामान वगैरह लूँ। तो इसी हवाले जब मैं निकला और उसको मैंने देखा कि ये वहाँ उतरा है गाड़ी से, तो मुझे पता था कि व्यापारी आदमी इसके और पैसे होंगे। वो जंगल के ख्याल से केले के बाग की तरफ गया है। लंगड़ा था, पोलियो का उसको तकलीफ थी, वो पाँव और टांग पे हाथ रख कर चलता था। जैसे ही आगे गया है, जवाबदार ने जवाबदार मोहरम ने, क्योंकि इसके गांव का था, ये इसको जानता था, इसके पीछे गया और इससे पैसों की डिमांड की। जो उसने पैसे देने से इसको इनकार किया। जो इसकी जैकेट पहनी हुई थी, उसकी चेन से
इसको दबोच लिया कि कहीं आवाज़ न निकाले, जो करीब दुकान है वो न सुन ले, क्योंकि करीब खेत थे जिसमें जंगल के ख्याल से वो गया ही उसके ऊपर चढ़ गया वहाँ, और वहाँ उसको चेन से दबा कर जब उसकी मौत वाक़ई हुई तो उसकी जेब तलाशी ली, जिसमें से उसके पैसे और उसके मोबाइल फ़ोन लेकर ही गलती हो गया, निकल गया। हमने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद थोड़ी कुछ मालूमात करने के बाद इसने कबूल किया कि बाकी में कंगला था, आज कभी उसके पीछे पहुंच गया वहाँ, और वहाँ इसको दबोच कर मैंने इसको जो जैकेट की चेन होती है वो उसके गले में डाल दी और वहीं से इसको मैंने प्रेस कर दिया जिसपे उसकी मौत वाक़ई हुई, और फिर उसका सामान निकल, और आज अल्लाह ने फतह की कि आज उसको गिरफ्तार कर लिया और बंदा जवाबदार हाजिर ये खड़ा है, उसका भाई उसको पता होगा। शामिल करते हैं डहरकी से। अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी में 2 ग्रुपों में तसादुम, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। डहरकी पुलिस की मौजूदगी में सोमरा बरादरी के 2 ग्रुपों में झगड़ा, लाठियों, डंडों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल। सोमरा बरादरी के 2 ग्रुपों में रिश्ते के तनाज़ा पर झगड़े में 5 अफराद जख्मी। जख्मियों में अब्बास सोमरू, सबूर सोमरू, आसिफ सोमरू, सरदार सोमरू, नवीद सोमरू, जबकि जख्मियों को सिविल अस्पताल लाया गया। पुलिस की भारी नफरी सिविल अस्पताल पर तलब कर ली गई। दोनों ग्रुपों की कंप्लेन डहरकी पुलिस थाना पर दर्ज कर ली गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।